everyone, and welcome to Dr. Dad Talk Show. I'm your host Induwala, and today I would like to introduce Dr. Sakshi Goyal, a pediatrician. Welcome to our show, ma'am. Thank you. Tell me about yourself. So, I'm Dr. Sakshi Goyal, MBBS MD Pediatrics, and I have done my PG in 2020. And after that, I have done my 3 years of senior residency in a government hospital. Okay. And I have mostly worked with the neonates, and all the pediatric group is also, it's my expertise. So, yes, that is all. Okay. What is the new nannies? आपने अभी एक शब्द use किया. What is that? Neonates. Yeah. Neonates are the babies which are newborn from the age of the time of their born until 28 days of life. Okay. So that is a neonate. Okay, ma'am. Actually, we have received many questions from the audience, ma'am, but we have shortlisted some common questions we have taken. Okay. Okay, shall we start? Yeah, sure. Okay. When should I start weaning? Some says 4-5 months, some say 6 months. What is the ideal age? So, first of all, we should understand what is weaning. Weaning is switching the baby from exclusive breastfeeding to introducing him to the complementary feeds. Okay. Like solids, which you say in a layman language. Okay. So, weaning, it should never be started before 4 months of age. Okay. The gut is not ready for that. So after 4 months, whenever you feel the baby is giving some signs like the baby's weight has doubled, then the baby is developed hand-eye coordination, like he's picking up things and putting up in the mouth. Okay. Like he's able to sit straight with his head and neck in a straight position. That is the time. And also the baby is able to swallow well. Oh. And he's interested whatever you are eating in eating that. So he's very keen to eat whatever you are eating. Okay. So at that time, it's the right time to start weaning. Okay. Yeah. अभी जैसा कि आपने कहा कि some mothers are not ready to for 4 months, right? Not before 4 months. Before month. So why, ma'am? Have you seen any this kind of? So in India, actually, I think most of the people, they know कि 6 months तक सिर्फ माँ का दूध हाँ, ये काफी ज़्यादा exactly. हाँ जो ज़्यादातर सुनने में आता है 6 माह तक माँ का दूध इज बेस्ट. Okay. तो बट ये दिस इज मोस्टली कि बच्चे 6 months इज जस्ट अ नंबर, राइट. तो बच्चा जब रेडी होता है तो आपको पता चल जाता है, मतलब डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं. आपको अगर डाउट है तो यू कैन गो एंड मीट अप अ पीडियाट्रिशियन. Okay. और नहीं है तो मैंने आपको जैसे ये साइंस बताया कि बच्चा सीधा बैठने लग जाए, जी. बच्चा अपने हाथ से उठा के कुछ चीज़ें मुंह में डालने लग जाए, या वो उसका पेट सिर्फ दूध से ना भरे. Okay. बट इसमें कुछ साइंस हैं जो कि आप मिस्टेकनली भी, मतलब आप उसको मिस्टेक की तरह मतलब ले सकते हैं आप उसे, कि बच्चा रात में ज़्यादा उठ रहा है. तो मदर्स मेरे पास आती हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर अब ये बच्चा ज़्यादा उठ रहा है, शायद इसका मेरे दूध से पेट नहीं भर रहा, तो क्या मैं इसका स्टार्ट कर दूँ सॉलिड्स. Okay. अपना फिस्ट बहुत ज़्यादा सक करता है, दैट इज़ नॉट अ साइन टू स्टार्ट वीनिंग. तो दोज आर जस्ट देयर रिफ्लेक्सेस, दैट इज़ नॉर्मल. Okay. So at that time we should not, and before 4 months the gut is not developed Okay. to digest the solid foods. So we should not start that before 4 months. Right, ma'am. Okay. Does the child shows any sign that tells yes, the baby is ready for weaning? Yeah, that is what I told you, the 4-5 signs. Okay. That baby's hand-eye coordination is good. Then baby is sitting upright on a high chair. Okay. Right, and he's able to move his head neck like this. Okay. Right, and he's able to swallow food well. He's not like whenever you are giving him food, he's not coughing it or vomiting it out. Okay. So if that is all, then we can start. That's Right, the ma'am. time. Move to next one. Tell 5 things that I should start with while weaning. Okay. So firstly, before 6 months, if you are starting, then it should be always combined with the breast milk. Breast milk to should go on till 1 year of age. With that, we have to add the complementary feeds. Till 1 year of age? Yeah. Okay. Breast milk that should be done, although you can decrease the frequency. Okay. But complementary feed should be started with the breastfeeding. It should not be stopped, breastfeeding. Okay. Right. So if you are starting that before 6 months of age, then iron-rich fortified rice cereals you can start.
राइट. एंड उसके बाद आप सूजी की खीर बना कर दे सकते हैं. Okay. और मैश करके, बिल्कुल बॉईल करके मैश करके एप्पल प्योरी बना सकते हैं. प्योरीज में आप दे सकते हैं. अच्छा. एंड कंसिस्टेंसी शुड बी सच कि जब आप उसको स्पून से आप उसको ऐसे करें तो वो ड्रॉप करके ओके, गिरे उसमें. हाँ, तो दैट इज द राइट कंसिस्टेंसी इन द स्टार्टिंग. ओके, या right, ma'am. What food items I should completely avoid while waiting? Okay, so sugar, it shouldn't be given to avoid the caries, tooth caries. Okay. And salt बहुत ज़्यादा नहीं देना क्योंकि अभी सोडियम का absorption उतना अच्छा नहीं होता गट में. तो salt, if you want to add, just a pinch, very less. Okay. So mostly we should avoid it till 7-8 months of age. And बहुत hard foods, whole nuts नहीं देने हैं because there's a risk of choking Yeah, yes, in ma'am. that, right? Packed foods नहीं देना. जितना हो सकता है घर का कुछ भी बना हाँ, के. घर का बना कर देना है. ओके, हाँ जी, ठीक है. आई एम scared about choking while feeding the child. Please tell me more about it. Okay, so This question is for you parent. so it is very common कि बच्चे gag करते हैं. Gagging is very common. There is a difference between gagging and choking. Okay. Choking is quite rare. Okay. And gagging is common. तो gagging is what? कि आपने स्पून से फीड किया बच्चे को and then suddenly he started to put his tongue out and has watery eyes and like he's retching कि बाहर निकालना है उसको. हाँ, right, right. And he turns red. So that is a normal reflex of the body. Okay. So that is not choking. That is just gagging कि बच्चे को अटक गया है थोड़ा सा, कहते हैं जिसकी थोड़ा सा अटक गया है जो कि वो कफ करके बाहर नॉर्मली निकाल देता है. हाँ. But in choking what happens कि the food or the any item gets stuck in the airway or esophagus like food pipe. So if that gets stuck, at that time the child is either excessively coughing or there is an ineffective coughing. The child is not able to cough, the child is not able to speak anything, the child is turning blue or he's turning unresponsive. So at that time we should suspect that there is a choking and we need to call an ambulance and Okay. yeah, and seek a medical advice soon. But before that we can have some measures. Those are first aids at home to prevent choking. ओके मैम, पहले क्या होता था, ज़्यादातर देखा गया है कि जब मदर फीड करती है बच्चे को तो उनको कहते थे ना कि आप लाइक साइड में लेकर उनको थोड़ा सा आप रब कराओ. तो अगर वो बच्चा नहीं करता था तो लाइक वो उल्टी कर देता था एक तरह से, लाइक वो फटाफट दूध में निकालता था. तो दैट इज चोकिंग और that is not neither choking nor gagging. ओके. So that is कि बच्चा बहुत ज़्यादा जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा जब फीड कर लेता है तो when you burp, so with the burp the excess amount of milk. Okay, that's natural. Yeah, that is normal. What is Heimlich maneuver? So Heimlich maneuver is, this is a first aid to prevent the children from choking. Okay. Right? So we can show you. So either it is an infant or a child that you have to see. If it is an infant, then firstly what you'll have to do is just look into the mouth. Don't just put your finger in the mouth कि मुंह में डालकर वो निकालना है. देखो उसको प्रॉपरली. अगर आपको कुछ फूड आइटम या जो भी सब्सटेंस है वो दिख रहा है तो उसको आराम से फिंगर डाल के यू कैन टेक इट आउट. ओके. अदरवाइज यू में लैंड अप कि वो और अंदर चला जाएगा. तो एंड नेवर डू दिस मैन्यूवर व्हेन द चाइल्ड इज कफिंग एक्सेसिवली because that is the body's normal natural response to throw out that thing. Yes. So once the child is not responsive or the things I told about the choking, अगर उनमें से कुछ होता है तभी आपको ये मैन्यूवर करना है. अगर चाइल्ड कॉफ करे then you should wait. ओके. राइट, अपने आप से निकाल देगा वो. राइट राइट. तो what you have to do is, it is an infant. ओके. So you'll have to turn him upside down and support him on your lap. Okay. With the head end downwards and this upwards, right? And in between then you have to hold his chest like this and jaws in between your fingers, right? Okay. And then in between both the shoulder blades you have to blow 5 like this with your hand ki heel. Right. Like this. 5 times. 5 times. Okay. So 5 times is the number, maximum 5 times. Okay. If it gets dislodged with 1 or 2 blows, then you don't have to do Right, 5 right. times, right? ठीक. So if in 5 times the child is not responding or the object doesn't come out, then you have to turn him upside down, on his back,
and then you have to start giving him chest thrusts, 5 of chest thrusts with these 2 fingers. So Okay. it's like 1, 2, 3, 4, 5, and then see. Then again. So this you have to do this alternatively. Right. And once this, after 5, this the child is not responding, then you have to call an ambulance. Okay. Yeah, at that time, right? Okay, ma'am. And this is for the infants. And if the child is a bigger child, right? So what you have to do is hold the child like this. Then you have to make your fist, and with the thumb inside, and just above the belly button, you have to press it like this with both your hands. Okay. And then inwards and upwards. 2, 3, 4, 5. Okay. So the thing will come out. If it is not coming out, then again you have to turn him like this and do the same. Sorry, this you have to do till the time the thing comes out. Okay. Right? So this is, and if the child turns unresponsive, suppose, so then you have to start the CPR. Okay. Yeah. Right. If you are अगर आपको पता है कि वो कैसे करना है, देन अदरवाइज आपको एम्बुलेंस तो बुलाना है. Okay. Right. Can I give just water to my child? Yes, water can be given to the children after 6 months of age, not before that. Okay. Like some people are confused कि कभी लूज मोशंस होते हैं बच्चों को, तो ORS लिखते हैं हम लोग. Right, ma'am. तो दे से कि आप कहते हो कि पानी तो देना नहीं देना है, नहीं बट ORS तो हम पानी में ही बनाएंगे. Okay. तो एट दैट टाइम वी आर गिविंग इन इलेक्ट्रोलाइट्स. तो पानी को अच्छे से बॉईल करके, ठंडा करके, उसमें वी कैन मेक ORS, एंड दैट इज द नीड ऑफ आर, राइट? तो वो दे सकते हैं, बट पानी नहीं देना है 6 मंथ से पहले. अच्छा, 6 मंथ से पहले पानी नहीं. पानी नहीं देना है बच्चों को. ओके, बट मैम ऐसा क्यों है कि हम पानी क्यों नहीं देते हैं बच्चों को? ब्रेस्ट मिल्क खुद ही सारे न्यूट्रिएंट्स से पूरा वो होता है, तो वो ब्रेस्ट मिल्क ही सारी नीड्स को कंप्लीट कर देता है, तो उसको पानी की भी ज़रूरत नहीं होती. नहीं होती है. हाँ. ओके. और दूसरा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. ओके. लाइक सारे लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं, और हैंडलिंग, चाइल्ड हैंडलिंग बहुत ज़्यादा एक ही हैंड से नहीं होती है. देयर आर मल्टीपल हैंड. यस मैम. तो कोई हैंड वॉश कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, किस तरह का पानी घर में आ रहा है, Right. उसको बॉईल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, RO से डायरेक्टली दे रहे हैं, बहुत चीज़ें होती हैं. Right. तो दैट्स राइट. The chances- थोड़ी चीज़ें ही होती हैं जो ज़्यादा प्रॉब्लम कर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन का ज़्यादा हो जाते हैं. ओके. व्हाट इज बेबी लेड वीनिंग? ओके. सो बेबी लेड वीनिंग इज कि जब आप खुद से स्पून फीड ना करके बेबी को फिंगर फूड्स रख देते हैं, वो खुद उठाकर खाता है. ओके. दैट इज बेबी लेड वीनिंग. तो इट हैज़ मेनी प्रोज एंड लेस ऑफ कॉन्स. ओके. तो प्रोज में क्या होता है कि एक तो आपको उसकी क्लोज मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द बेबी इफ ही इज ईटिंग वेल बाय हिमसेल्फ, राइट? तो उसमें फर्स्ट थिंग इज़ कि उसको वही हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, हैंड आई माउथ कोऑर्डिनेशन, तो वो खुद से उठाकर वो खाएगा. दूसरा, उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं. तो दिस इज़ अ पिंसर ग्रास्प, तो वो इफ़ ही इज़ पिकिंग अ फूड एंड ईटिंग बाय हिमसेल्फ, तो वो ग्रास्प भी डेवलप होगा. ओके. थर्ड थिंग कि वो जितना उसको खाना है, वो उसको पता होगा कि मैं नाउ आई एम फुल, अब मैं इसके बाद नहीं खाना. ओके. तो इट इज़ वेरी कॉमन कि जब हम खुद फीड करते हैं विद स्पून, तो हमें पता नहीं रहता कि ना उसका पेट भर गया या नहीं भरा है, तो वो हम ज़्यादा भी खिला देते हैं कई बार राइट. उसको. राइट मैम. तो वो चीज़ भी अवॉइड हो सकती है. दूसरा, डेक्सटेरिटी डेवलप होती है कि द बेबी इज गोइंग टू बिकम लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, तो वो भी उसको समझ आता है कि मैं किस हाथ से उठाऊं. ओके. तो वो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दैट. बस इसमें चोकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें एवरी टाइम वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट विद द चाइल्ड. दैट्स राइट. कि अकेले नहीं छोड़ना, कम से कम हमारी निगरानी में रहे बच्चा. हमारी निगरानी में रहे, अदरवाइज वो खाना भी सीख जाता है. प्लस वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि मैं खिलाऊं बैठकर. बिल्कुल. आप उसके सामने आप उस प्लेट लगा कर दे दें, वो खुद से खाएगा. और पहले टाइम में होता भी था, हम कुछ ना कुछ दे देते थे उनको ना, डाल के कटोरी में कि हाँ आप थोड़ा थोड़ा करके अपने आप से खाने की हैबिट बने बच्चे. जॉइंट फैमिलीज में यही अच्छी बात होती थी पहले कि दादा दादी बहुत लोग होते थे, तो कोई कोई कुछ खिलाता रहता था, तो बच्चे सीख जाते थे खाना. अब आजकल
बहुत कम हो गया है ऐसा, अब न्यूक्लियर फैमिलीज है ना, तो उनको लैक ऑफ नॉलेज भी है, लैक ऑफ नॉलेज। तो इसलिए उनको पता भी नहीं रहता बच्चे को क्या देना है। क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि भाई कई बार बच्चे को हम लोग खिलाते रहते हैं कंटिन्यूसली, पता ही नहीं होता कि बच्चे का पेट भर गया, फिर भी हम देते जा रहे हैं, फीड करते जा रहे हैं। मेरे पास आते हैं पेशेंट्स तो पूछते हैं कि मैम हाफ कटोरी, 1/3 कटोरी, 1/4 कटोरी, तो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड अभी ना। तो बिल्कुल मैम, ये वैसे पता कैसे चलता होगा, लाइक जैसे वो आप बता रहे हो कि आपके पास आते भी हैं पेरेंट्स की, तो जब बच्चा अपना मुंह बिल्कुल घुमा ले, माउथ को टाइटली क्लोज कर ले, राइट, ओके, तो बिल्कुल खाने That's a से sign. मना कर दे, दैट्स अ साइन कि अब उसको फोर्स नहीं करना। करेंगे, इफ यू फोर्स देन उसको फूड अवर्जन्स हो जाएंगे। ओके, हाँ, तो वो डेवलप करेगा फूड अवर्जन्स की, मैं खाऊंगा ही नहीं खाना। ओके, तो आई हैड मेट अ पेशेंट जिसको आई थिंक उसकी मम्मा, वो पहले होता था ना एक पैर यहाँ लिटाकर ऊपर पैर रख कर और चम्मच से वो दूध ऐसे देते थे। ये था, तो उसके साथ ऐसा होता था एंड ही केम, उसका फादर आया, उसके फादर के साथ होता था ऐसा। अच्छा, तो ही स्टिल डिसलाइक्स एवरी वाइट फूड, ही डजंट ड्रिंक मिल्क। ओके, हाँ, तो उसको वाइट चीज़ों से नफरत है। तो बच्चे को, फादर को, हाँ, अभी तक मतलब my God. वो इतना उसके दिमाग में वैसा हुआ उसके साथ। ओके, सो ऐसा कभी भी नहीं करना, फोर्स करके नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा वो फोर्स की वजह से, ओके, ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है। राइट मैम, हाउ डू आई नो इज माय बेबी गेटिंग इनफ फूड? हाँ, तो एक तो आपको मैंने बताया कि यस मैम, बच्चा अपने आप ही मना कर देगा, माउथ क्लोज कर लेगा टाइटली, वहाँ से टर्न कर लेगा हेड, वहाँ से चला जाएगा उठ के, और ही स्टार्ट कराएंगे अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो वो फेंक देगा उठाकर सामान। तो एक तो वो है, दूसरा उसका वेट गेन चेक करते रहना हमें, ओके, कि यू हैव टू विजिट द पीडियाट्रिशियन। जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, मोस्टली वेट सबके बाद होता ही है, तो इट शुड बी इन अ राइजिंग पैटर्न, मतलब वेट गेन अच्छा होना चाहिए, ओके, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए उसकी, और बाकी तो डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए कोई भी। दैट्स राइट, तो आयरन डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन है आफ्टर 6 months, क्योंकि मिल्क से उतना वो मिलता नहीं है और खाना प्रॉपर खाते नहीं है, तो उस टाइम वी कैन गिव सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स। तो यू कैन एवरी टाइम आस्क योर पीडियाट्रिशियन फॉर दैट। ओके, कैन यू एलैबोरेट विद एन एग्जांपल, हाउ वुड यू प्रोसीड फॉर वीनिंग? ओके, तो मतलब कोई मेरे पास बच्चा आता है, 5 months का बच्चा है, एंड द मदर सेज कि डॉक्टर मुझे लगता है कि अब इसका मेरे दूध से पेट नहीं भर रहा है, या मेरा दूध उतना नहीं आ रहा है। तो पहली चीज़ तो हम बोलते हैं कि उसका यूरिन की फ्रीक्वेंसी पूछते हैं कि इफ़ द बेबी इज़ पासिंग यूरिन 6-7 times a day, दैट मीन्स कि उसका दूध वगैरह सब अच्छा आ रहा है, दैट्स द मदर की कंसर्न ऐसा होता है कि उसका पेट नहीं भर रहा। ओके, दूसरा, इफ़ यू हैव टू स्टार्ट वीनिंग, वही सारे साइंस चेक कर रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे आपको। अगर उनमें से सारे साइंस फुलफिल हो रही हैं, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, देन वी कैन से कि अभी आप इसको कोई भी एक सीरियल, राइस सीरियल से इंट्रोड्यूस करके, ओके, आयरन रिच फोर्टिफाइड राइस सीरियल वो स्टार्ट कर सकते हैं, या सूजी की खीर बना कर दे सकते हैं। उससे हम स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट 3 to 5 days के लिए वो हम एक ही चीज़ देंगे, विल नॉट इंट्रोड्यूस 2-3 थिंग्स एक साथ, अच्छा, सो दैट हम रूल आउट कर पाए कि कोई एलर्जीज अगर है तो वो उसकी वजह से तो नहीं है। ओके, राइट, तो किसी बच्चे को वीट से एलर्जी होती है, किसी को राइस, किसी से ग्लूटेन से होती है, तो ये हम कैसे रूल आउट करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि पहले हम एक बार में एक ही सीरियल इंट्रोड्यूस करेंगे, ओके, वो हम 3 to 5 days देखेंगे, अ वीक वी कैन सी, Right. अगर वो ठीक है, टॉलरेट कर रहा है बच्चा, देन वी कैन गो ऑन टू अदर वंस। और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स तो हम इंट्रोड्यूस कर ही सकते हैं स्टार्टिंग से। हाँ मैम, जैसे देखा था कि वो बनाना देते थे मैश करके बच्चों को, वो दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, दाल का पानी, ऊपर का पानी नहीं, मतलब बहुत पतली सी दाल बनाकर, अच्छा वो भी हम दे सकते ज़्यादा हैं, सीटी लगाकर हल्का सा लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट डालकर डालकर दे सकते हैं। अगर बच्चा प्लेन खा रहा है, दैट इज वेल एंड गुड, नहीं खा रहा है तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए ऐड कर सकते हैं। सही है मैम, भी छोटा बच्चा कुछ भी खिला दो, बड़े होके तो कुछ नहीं खाएगा ऐसा। ओके, अच्छा मैम, जैसा भी आपने बताया मुझे कि वो हम लोग कुछ भी सीरियल्स वगैरह देते हैं, ये जो एलर्जी होती है जैसे आपने बताया, ये कैसे पता चलता है बच्चे को अगर हम 3-4 days उनको दे रहे हैं? हाँ, तो ये कई बार कुछ बच्चों को रैशेज आ जाते हैं बॉडी पे, ओके, कुछ बच्चों को लूज मोशंस हो जाते हैं। राइट अवे और 2-3 days डेज नहीं, मतलब रैशेज तो अगर आने होते हैं तो सेम डे भी आ सकते आ हैं, जाते हैं। ओके, और
लूज मोशंस हो जाएंगे, ओके स्टूल में ब्लड आएगा, लाइक काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है, तो हम इसलिए बोलते हैं काउ मिल्क भी 1 ईयर से पहले पहले नहीं देना। देना। ओके तो काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी में बहुत कॉमन है कि स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, ओके तो ये सब होता है, उससे पता चल जाता है। और बच्चा वॉमिट कर रहा है, उसको टॉलरेट ही नहीं हो पा रहा, वो जो खा रहा है वो फटाफट या तो थ्रू मोशंस या वॉमिट निकल रहा है उसको, ओके तो इट माइट बी, मैं आई एम नॉट सेइंग कि होगी, बट फिर आपको चेकअप कराना है। ओके हाँ, एंड यू कैन ट्राई स्टॉपिंग दैट एंड देन वॉचिंग, तो अगर वो फर्क पड़ रहा है दैट मीन्स इट वाज बिकॉज ऑफ दैट। ओके एंड विच फ्रूट इज गुड फॉर चाइल्ड इन्फेंट, लाइक जैसे कि मैंने आपको बनाना बताया, वो ठीक रहेगा बच्चे के लिए? एप्पल बॉईल करके उसका प्योरी दे सकते हैं, पम्पकिन का प्योरी दे सकते हैं। ओके इनके जूस भी दे सकते हैं आप? जूसेस को मैं इसलिए इतना प्रेफरेंस नहीं देती हूँ क्योंकि फाइबर सारा निकल जाता है जूस से, ओके तो अगर बच्चा पूरा फ्रूट खा रहा है दैट इज़ वेरी गुड। ओके घर पे बना के अगर दें तो भी नहीं? चाहे आप घर पे भी बनाए तो जूसर में फाइबर तो आपका निकल नहीं गया गया, ना, right. that is आप सिर्फ शुगर का पानी दे रहे हो उसको। ओके तो हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं देना, बट डेली ही नहीं देना चाहिए। ओके जूस से बहुत बेटर फ्रूट्स होते हैं। ओके हाँ, तो उसको थोड़ा च्यूइंग की भी हैबिट आएगी, क्योंकि सिर्फ स्वेलो करने के लिए देते रहेंगे तो फिर उसको आगे जाके च्यूइंग की भी हैबिट अच्छे से डेवलप नहीं होगी। तो आई हैव सीन कि 5-5 साल तक मम्मियाँ रोटी सब्जी सबको वो मिक्सी में चला के बॉटल से दे रही हैं बच्चों को, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू च्यू। राइट मैम, कि वो आसानी से लाइक पी ले, बॉटल में ही पी ले। ओके वो हैबिट ही नहीं फिर हो पाएगी बच्चे की। दैट्स राइट। अच्छा मैम, एक चीज़ और कि एक पेरेंट ने पूछा है कि जैसे बच्चे का पॉटी का कलर चेंज हो जाता है, क्या इससे भी कोई सिम्टम्स हैं, गुड और बैड? पॉटी का कलर हर बार चेंज होता है, लाइक न्यू बॉर्न्स जो स्टार्टिंग में करते हैं वो दिन में 4-4 5-5 बार करते हैं, राइट मैम, और वो इवन सेमी सॉलिड स्टूल्स भी करते हैं, राइट। तो वो सब वो नॉर्मल है। देन 1-1.5 मंथ पे फिर पैटर्न चेंज होता है, तो वो जो 4-5 बार कर रहे थे वो दिन में 2 बार 1 बार भी हो जाता है, या 2-3 दिन में 1 बार हो जाती है। फिर कलर उसमें ग्रीन, हल्का ग्रीनिश भी हो जाता है, येलोइश भी हो जाता है। द कलर दैट शुड नॉट बी देयर वाज इज रेड, कि ब्लड नहीं हो, राइट। ठीक है। ब्लैक, बहुत ज़्यादा ब्लैक ना हो, अनलेस कि बच्चा आयरन ले रहा है, आयरन के साथ ब्लैक पॉटी इज़ नॉर्मल। ओके तो ब्लैक नहीं हो, वाइट नहीं होना चाहिए। वाइट स्टूल्स इंडिकेट कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वुड बी देयर, ओके ठीक है। तो वाइट स्टूल्स नहीं होने चाहिए, बाकी तो एवरी कलर इज़ नॉर्मल। ओके क्योंकि पहले के टाइम में तो वो ग्रैंड मदर्स वगैरह ज़्यादा रखती थी इन चीज़ों का ध्यान कि बच्चा कैसे स्टूल कर रहा है, किस कलर क्या है, तो वो इन चीज़ों का आजकल की जो न्यूक्लियर फैमिलीज है उनमें मदर्स को पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो थैंक यू सो मच मैम, आपके ज़रिए हम अपने ऑडियंस को बता पाएंगे, न्यू पेरेंट्स को भी बता पाएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है उन्हें। एनी टेक अवे मैसेज फॉर द ऑडियंस? सो टेक अवे अबाउट दिस इज़ कि बच्चों के साथ आपको बहुत पेशेंट होना पड़ेगा। ईटिंग इज़ अ प्रोसेस बाय इटसेल्फ, तो बच्चे खुद से धीरे धीरे अडैप्ट करते हैं। पेरेंट्स को बहुत पेशेंट होना पड़ेगा, बच्चों को टाइम दें, एम्पल ऑफ टाइम दें उनको अडैप्ट होने के लिए। 6 मंथ से वो सिर्फ मिल्क ले रहे हैं, आप सॉलिड्स देंगे तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनकी गट को, उनको टेस्ट डेवलप होने में, सब चीज़ में टाइम लगेगा। तो पहले तो आप उनको टाइम दें, उनको प्रेज़ करें और उनके एफर्ट्स को हमेशा लाइक अवॉर्ड करें कि आपने अच्छा खाया, अच्छा किया, तो देन यू क्लैप, गिव हिम सम लाइक गिफ्ट्स और समथिंग, तो ही विल बी वेरी एनकरेज्ड, राइट। और परेशान नहीं होना है, कुछ भी प्रॉब्लम है देन डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। यस राइट, तो सब बच्चे हो जाते हैं, सब बच्चे अडेप्ट कर जाते हैं, सब खाते हैं, हम सब बड़े हुए हैं, सब खाते हैं, तो कोई इसमें इश्यूज नहीं आते हैं। और जी हाँ, कुछ इश्यूज हैं तो वो सॉल्व हो सकते हैं। टाइम टू टाइम चेकअप भी बहुत ज़रूरी है। चेकअप भी ज़रूरी है, टाइम से चेकअप। ऑल वैक्सीनेशंस बहुत टाइमली कराने चाहिए। गवर्नमेंट में जो लग रहे हैं वो अलग, प्लस जो प्राइवेट में अगर आप लगवा सकते हैं तो ऑप्शनल वैक्सीन जो होते हैं वो भी हर बच्चे को लगनी चाहिए, क्योंकि हर डिजीज़ की वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, बट जिसकी हुई है एंड यू कैन अफोर्ड, देन वो बच्चे को मिलनी चाहिए। Right, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am, for being a part of Dr. Dad Talk Show. Thank you, audience, for watching us. I hope you like this show. And if you have any other question, kindly comment us. I will give you the reply. And take care. Bye-bye. And keep watching Dr. Dad Talk Show. थैंक यू। Thank you so much, ma'am.
है।